discuss the homework. By the way, your subsidiary books papers are also here. Don't forget to collect them while leaving. And marks में अच्छा किया ये टाइम, much better than the last tests. And full marks वाले हैं ध्रुव पानुशाली फुल 30 on 30, प्रियल पटेल उसमें मिटी भाई 30. हीर पटेल is 30 on 30. 3 people have scored full 30 on 30. 29.5 पे खुशी है, तनय है, कार्तिक है. देन देर आर 29 वाला. 29 में आशना, पूरव, रैना, हेम, वैभवी, लौकिक, आदित्य, झील, तीर्थ, कशिश, all on 29. Okay, 3 people have scored full. You might have lost marks in some silly error or mostly in notes. I told you to write notes properly. Some of you have written notes for cash purchase, but they forgot cash discount. That also goes in JP. Okay, there was cash sales and उसके साथ CD भी था, तो cash discount भी आता है ना, तो वो JP में जाएगा. वो मेंशन करने का रह गया काफी लोगों का. और एक सिली एरर मैंने देखा, दैट वाज आपने गुड्स रिटर्न किया था, 18,000 का कुछ गुड्स परचेज किया था, आधा कैश आधा क्रेडिट, और 20% रिटर्न हुआ था. तो पब्लिक ने क्या किया, वो 9,000 का ही 20% ले लिया. एक्चुअली 18,000 का 20% लेना है ना, पूरे का रिटर्न किया है 20%. खाली क्रेडिट का 20% रिटर्न नहीं हुआ, फुल गुड्स का 20% रिटर्न हुआ है. वो कॉमन एरर था, काफी लोग का हुआ है. ओके, देख लेना मिस्टेक्स, आज दे देता हूं पेपर्स. ओके, चेक द होमवर्क सम्स नाउ, स्टार्टिंग विथ द फर्स्ट पेपर. ओके, टू 2019 वाला पेपर. See, 2019 का सबसे पहला जर्नल. Kunal started business with the following assets and liabilities. Your entry should be cash account debit 3 lakhs, furniture debit 1 lakh, bank debit 5 lakhs, stock of goods 30,000, to creditors 70,000, to capital 8,60,000. Is that clear? बराबर है. अच्छा, एनएम में यहाँ पे परचेज बोला है, स्टॉक बोला है, गुड्स बोला है, क्या बोला है? स्टॉक ऑफ गुड्स. खाली स्टॉक भी नहीं. ओके ओके, थोड़ा अलग अलग करवा रही है अपना सुप्रिया मैडम. विल डिस्कस कितना होमवर्क दिया है. परचेज, विल डिस्कस दैट कॉलेज वाला शीट ना. Purchase goods having a list price of 1 lakh from Shashank at 10% trade discount and paid 1/3 of the amount immediately by check. आपका एंट्री होना चाहिए परचेज टू बैंक टू शशांक. परचेज में 90,000 टू बैंक, 30,000 टू शशांक, 60,000. Is that right? Then sold goods having a list price of 80,000 to Arun, 5% TD, 1/4 of the amount received back in cash. Entry should be cash debit, Arun debit to sales. Cash 19, Arun 57 to sales 76. Part of the old furniture having a book value of 50,000 was sold to Vinit for 30,000 cash. Entry should be cash account debit 30,000, loss on sale of furniture debit 20,000, to furniture 50,000. Cash loss to furniture. Then goods costing 6,400 and cash 3,600 were withdrawn by the owner for personal use. Entry should be drawings to goods withdrawn for personal use. College में I think NM में goods withdrawn for personal use बोला है, not purchases. So ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज टू कैश. ठीक है, ड्रॉइंग्स में 10,000 टू गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज 6,400 टू कैश 3,600. इज दैट क्लियर? Goods having cost price of 14,000 was lost by fire and insurance company admitted a claim of 65% of loss. Entry should be lost by fire account debit 4,900, insurance claim debit 9,100, to goods lost by fire 14,000. Is that right?
loss by fire, insurance claim to goods lost by fire. Purchase a computer of 70,000 at 18% GST from Vijay Sales and amount paid by NEFT. Entry should be computer debit, input CGST debit, input SGST debit to bank. Computer debit 70,000, input CGST 6,300, input SGST 6,300 to bank 82,600. Is that right? First question, any problem? Any doubts? Anyone? All clear? अच्छा टोटल्स का उसने बोला कैरी फॉरवर्ड ब्रॉट फॉरवर्ड हर एक पेज का करना है जर्नल का टोटल हाँ हर पेज के एंड में टोटल करना है बोला था ना सुप्रिया हर पेज के एंड पे ऐड करना टोटल कैरी फॉरवर्ड टोटल ब्रॉट फॉरवर्ड सॉरी आई टेल यू नेक्स्ट वन है याद को ध्यान नहीं देता क्वेश्चन 2 दैट इज लेजर अभी इसमें आपको बनाने का है सिर्फ लेजर अकाउंट ठीक है तो मार्क्स आर ओनली फॉर लेजर जर्नल विल बी इन रफ okay journal will be in rough but it's better if you make journal and then do ledger ऐसा verbally orally करने का ट्राई मत करो क्योंकि मिस्टेक होने का चांस है ठीक है दो अकाउंट्स आपसे पूछा गया है अय्यर अकाउंट एंड समर तो हमें सॉरी तारक अकाउंट अय्यर एंड तारक अकाउंट ठीक है तो पहले जर्नल डिस्कस कर लेते हैं समर्थ ओज अय्यर 28,150 एंड तारक ओज समर इसका मतलब क्या है बैलेंस है समर्थ ओज अय्यर मतलब वी हैव टू पे टू अय्यर सो अय्यर कौन हुआ हमारा क्रेडिटर सो बाय बैलेंस बीडी और तारक ओज समर मतलब तारक हुआ हमारा डेटर सो टू बैलेंस बीडी तो वो बैलेंस है उसकी कोई एंट्री नहीं आएगी देन परचेज गुड्स फ्रॉम अय्यर ऑन क्रेडिट हैविंग ग्रॉस प्राइस 58,000 at 5% TD freight charges 250 paid by अय्यर on behalf of समर entry should be purchase account debit freight account debit to अय्यर account purchase 55,100 freight 250 to अय्यर 55,350 is that right then return goods having gross price 11,600 to अय्यर to purchase return 11,020 is the amount अय्यर to purchase return 11,020 then goods costing 50,000 were sold to Tarak on credit at a profit of 20% on cost and Samarth paid freight charges of 500 in cash on behalf of Tarak. Entry should be Tarak to sales to cash. Tarak to sales to cash. Tarak will be 60,500 to sales 60,000 to cash 500. Is that right? Correct? Tarak to sales to cash. Then Tarak return goods having selling price 6,000 to Samarth. Entry should be sales return to Samarth. Sales return to Samarth. Sorry, sales return to Tarak. Sales return to Tarak 6,000. Total amount due to अय्यर was settled in cash. He allowed 2.5% cash discount on the total amount. ये आपको क्रेडिट माइनस डेबिट करके मिलेगा. Amount is अय्यर to cash to discount. अय्यर में आना चाहिए 72,480 to cash 70,668 to discount received 1,812. Is that right? Similarly, total amount due from Tarak was received in cash. Samarth allowed 2% cash discount on the total amount. ये भी डेबिट माइनस क्रेडिट करके आएगा लेजर में से आपको डेबिट माइनस क्रेडिट जो भी बैलेंस आए उसमें से 2% माइनस करो एंट्री बनेगी कैश डिस्काउंट अलाउड टू तारक कैश 94,815 डिस्काउंट अलाउड 1935 टू तारक 96,750. इज दैट क्लियर? आ रहा है अमाउंट? हाँ ना. Cash discount to Tarak. Cash is 94,815. Discount is 1935. To Tarak it is 96,750. कुछ अलग आ रहा है? बराबर है? चलो बढ़िया. Very good. इसको अलग आ रहा है? जर्नल में नहीं. लेजर अकाउंट चेक कर लो. अय्यर अकाउंट एंड तारक अकाउंट. अय्यर में मिलना चाहिए आपको पहला तो बाय बैलेंस बीडी 17 को 28,150. अय्यर अकाउंट बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस 28,150. देन 4th of July बाय परचेजेस 55,100. उसी के नीचे बाय फ्रेट 250. और इधर डेबिट साइड पे 8th of July टू परचेज रिटर्न 11,020 टू कैश 70,668 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 1,812. और तारक अकाउंट में आना चाहिए टू बैलेंस बीडी 40 to 250
टू सेल्स 60,000 टू कैश 500 और क्रेडिट में बाय सेल्स रिटर्न 6,000 बाय कैश 94,815 and by discount allowed 1935. Total of Tarak is 102,750. Total of a year is 83,500. मला तारकना अमाउंट अलग आलो છે બટ ટોટલ કરું છું તો 96750 It's 102,750. तारक का डेबिट का अमाउंट देख लो 42,250. ઈ નહીં સર જર્નલમાં સેટલ કર્યું ને આપણે તારકને તો તારક ના લેજર માં ડેબિટ માં અમાઉન્ટ જોઈ લે 42,250 દેખાયું. સેલ્સ 60,000 कैश 500 આ બાજુ સેલ્સ રિટર્ન 6,000 બસ તો ડેબિટ માઇનસ ક્રેડિટ ટોટલી એરર છે. કર્યું સર મને અલગ આલો બટ પછી પાછું બધાનું ટોટલ કરું છું ક્રેડિટ બેલેન્સ તો 1067 બરાબર છે આ ધીસ ઇઝ કરેક્ટ. બાય કેશ 94,815 and by discount allowed it is 1935 only. अब कैलकुलेशन मिस्टेक હશે. डेबिट माइनस क्रेडिट કરી દો અને એનો 2% લે. 2.5 नहीं एंड दूसरे का 2%. 2. तारक का ऊपर वाले का 2.5 है. हाँ तारक इट इज 2%. सम अयर का इट इज 2.5. वेवનું 2.5 આનું 2 છે. थर्ड सम राक्षसता सब्सिडरी बुक्स. ये अगर खुद से आ गया तो मतलब ज्ञान प्राप्त हो गया समझ लो. थर्ड सम और सब्सिडरी बुक्स. शिव फर्नीचर ठीक है. शिव फर्नीचर वाला सम था. परचेज फ्रॉम आगम ट्रेडर्स 120 chairs having a list price of 2,000 each and 10 showcases having a list price of 50,000 each at 20% trade discount. So पहला purchase book आगम traders, your amount should be 5,92,000. 5,92,000. Very good. 5,92,000 should be the amount. ठीक है. दोनों पे टीडी लेना दोनों पे ठीक है. Yes. Then sold to Gupta. पहला मिला. Sold to Gupta traders 60 chairs and 10 showcases purchased on 1st July at least price less 5% TD. तो सेल्स बुक आना चाहिए गुप्ता ट्रेडर्स 5,89,000. Is that right? 5,89,000. Very good. Seventh core है गुप्ता ट्रेडर्स रिटर्न as 10 chairs and 1 showcase being defective. So सेल्स रिटर्न बुक में आएगा गुप्ता ट्रेडर 66,500. Is that right? सेल्स रिटर्न बुक गुप्ता ट्रेडर 66,500. कैसा करने का ये दोनों का अमाउंट मालूम है ना सेल्स का. तो वो सेल्स का यूनिट्स कितना था 60 और 10 और भाई ने रिटर्न किया 10 और 1. सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई. 60 का सेलिंग प्राइस इतना तो 10 का कितना. 10 का सेलिंग प्राइस कितना तो 1 का कितना. क्रॉस मल्टीप्लाई. इज दिस क्लियर? तो सेल्स एंड सेल्स रिटर्न हैपन एट सेलिंग प्राइस. गुप्ता ट्रेडर्स वुड बी 66,500. इज दैट क्लियर? बढ़िया. देन गुड्स रिटर्न बाय गुप्ता ट्रेडर्स और 7 जुलाई में रिटर्न टू सप्लायर आगम. आगम ट्रेडर परचेज रिटर्न में आएगा अभी. अमाउंट इज 56,000. मिला. अमाउंट इज 56,000 फॉर आगम ट्रेडर्स परचेज रिटर्न्स बुक. इज दैट राइट? देन नेक्स्ट वन वाज अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ शिव फर्नीचर मार्ट Sujit Traders supplied 100 desks to Ajit. The purchase price of each desk for Shiv Furniture Mart was 5,000 and selling price was 120% off cost था वो. It wasn't 120% on cost. It was 120% off cost. 120% प्रॉफिट नहीं था. प्रॉफिट was 20%. Profit was 20%. Okay. So पहला परचेज बुक में आएगा आपका सुजीत ट्रेडर्स 5 lakhs और सेल्स बुक में आएगा अजीत 6 lakhs. परचेज बुक में सुजीत 5 lakh, सेल्स बुक में अजीत 6 lakh. इज दिस क्लियर? क्यों समझा? 5 लाख रुपया कॉस्ट तो डायरेक्टली दिया आपको. 5,000 इंटू 100 आ जाएगा. प्रॉफिट कितना है? 120% ऑफ कॉस्ट. मतलब योर सेलिंग प्राइस, आपका सेलिंग प्राइस इज 120% ऑफ कॉस्ट. अगर कॉस्ट 100 है तो सेलिंग प्राइस 120 है. दिस इज द मीनिंग. समझा? हेलो.
प्रॉफिट नहीं है, सॉरी, सेलिंग प्राइस इज 120% ऑफ कॉस्ट. अगर कॉस्ट 100 रुपया है तो सेलिंग प्राइस 120 है. ये 5 लाख है तो ये कितना? 6 लाख. Got that? So this was purchase and sales between Sujit and Ajit. Purchased 10 sofa sets costing 70,000 each and 10 tables costing 20,000 each from Kanchan Traders. Purchase book Kanchan Traders 9 lakh rupees. Is that right? Then you got sold to JJ and Sons 5 sofa sets and 5 tables purchased from Kanchan Traders at a profit of 20% on selling price. What you need to do in such a situation? Make the equation. So sales book में आना चाहिए JJ and Sons. I think amount is 5,62,500. Sales book JJ and Sons 5,62,500. Is that clear? बढ़िया. Then JJ and Sons return 2 sofa sets and 2 tables being defective. So sales return में JJ and Sons 2,25,000. Is that right? And purchase return में goods returned by JJ and Sons were returned back to our supplier Kanchan Traders. So purchase return में Kanchan Traders 1,80,000. Purchase return Kanchan Traders is 1,80,000. Is that right? Once again, Sir, sales return JJ and Sons. 2,16,000. 25. Sales return JJ and Sons. 50,000 plus 1,75,000. See, JJ and Sons का 5 सोफा सेट और 5 टेबल बेचा था, बराबर है. 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस था. यस और नो? तो आपका 70,000 का एक था सोफा और 20,000 का था आपका टेबल. तो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? एनीवन हैज कैलकुलेटेड? 25,000 or 87,500. 25,000 और 87,500. यस. सेल्स मिला आपको बराबर. सेल्स का अमाउंट इज 5,62,500 JJ and Sons. इसको double, इसको double. So 87,500 was the selling price per sofa and 25,000 was the selling price per table. अभी कितना रिटर्न हुआ है वहां से? 2 सोफा और 2 टेबल. तो 87,500 into 2 and 25,000 into 2. So 87,500 into 2 is what? 1,75,000. Right? And 25 into 2 is 50,000. So 1,75,000 plus 50 is 2,25,000. That's correct. क्या गड़बड़ किया? What लोचा? परचेज रिटर्न में आएगा आपका परचेज प्राइस. परचेज प्राइस क्या था? 70,000 और 20,000. तो 2 सोफा का हुआ 70 into 2 140 और 2 टेबल का हुआ 20 into 2 40. Is that right? So 140 and 40 will give you 180. Is that right? 1,80,000 is purchase return. Simple. Comfortable this? One. All of you. Totals. Purchase book का total is 19,92,000. Sales book का total is 17,51,500. Yes. Purchase return it is 236,000 and sales returns it is 291,500. So flat 20. 2,90,000 flat है. इसका Last वाले. नहीं 66,500 और 225 है. 291,500 आएगा. 291,500 आएगा. क्या टोटल्स? परचेज का आएगा 19,92,000. 19,92,000. सेल्स का आएगा 17,51,500. परचेज रिटर्न 236. सेल्स रिटर्न 291,500. Noted? ये सम खुद से आया करेक्टली. देखो मिस्टेक हुआ रहेगा. करेक्टली फर्स्ट अटेम्प्ट में आया, मतलब बी प्राउड. ओके, दिस वाज द मोस्ट सब्सिडरी का डिफिकल्ट सम टिल नाउ. Easy है. कंबाइंड, ऑल कॉलेजेस कंबाइंड. ओके, नाउ एक और इससे भी डिफिकल्ट था. दैट वाज ओदार 2019, बट दैट वाज एनालिटिकल सब्सिडरी विद जीएसटी वाला. NM doesn't have analytical. Now come to cash book. Kunal's cash book का क्वेश्चन.
कैश इन एंड कैश एट बैंक फटाफट. सो टू बैलेंस पीडी, कैश कॉलम 45,000, बैंक कॉलम 74,800 मिला. Then listen. Received a check from Rohit 14,200 and deposited it into bank. So to Rohit, bank column 14,200. बराबर है? One of the customer Ahmed directly deposited 24,000 into our bank. So to Ahmed, bank column 24,000 direct deposit. Is that correct? Then Rohit's check returned dishonored and bank debited our account for 200 for bank charge. पहले तो रोहित का डिसऑनर हुआ, so टू रोहित का हो जाएगा बाय रोहित 14,200 बैंक कॉलम. इज दैट राइट? और आपका बैंक चार्जेस, so बाय बैंक चार्जेस बैंक कॉलम शुड बी 200 rupees. इज दैट करेक्ट? हेलो. Old computer having book value of 40,000 was sold to Pawan against a bearer check of 42,000. This was a bit tricky. इधर आपका एंट्री होना चाहिए टू कंप्यूटर कैश कॉलम 42,000. Did you get this? टू कंप्यूटर कैश कॉलम 42,000. आपको पता है लेजर के वक्त मैंने बताया था आपका कंप्यूटर था कितने का? प्रॉफिट और कंप्यूटर था कितने का? 40 का था. बेचा कितने में? 42 में. और बेरर चेक मिला है, राइट? तो एंट्री क्या बनेगी? कैश टू कंप्यूटर टू प्रॉफिट. Is that right? This is 42, 40 and 2. How do you split this entry? प्रॉफिट टू कंप्यूटर और कैश टू Exactly. This is not cash to computer 40 and cash to profit 2. Remember, profit or loss is non-cash. Profit and loss on asset is a non-cash item. Ledger का sum number 4 बिल्डिंग का प्रॉफिट था. याद आ रहा है? तो प्रॉफिट की एंट्री इज नेवर कैश टू प्रॉफिट. इसको स्प्लिट कैसे करने का? कैश टू कंप्यूटर 42 एंड कंप्यूटर टू प्रॉफिट. प्लीज लुक एट द बोर्ड. दिस इज योर स्प्लिट एंट्री. कैश टू कंप्यूटर 42 एंड कंप्यूटर टू प्रॉफिट इट्स 2,000. याद आया ये? यहाँ पे लोचा हो जाता है. पब्लिक क्या करता है? सीधा सीधा कैश टू कंप्यूटर 40 मार देता है. दैट इज रॉन्ग. ओके, इट इज कैश टू कंप्यूटर 42 एंड कंप्यूटर टू प्रॉफिट 2. दैट लॉस या प्रॉफिट इज नेवर रिलेटेड टू कैश. इट इज रिलेटेड टू एसेट. लॉस के केस में भी आपकी एंट्री होती है लॉस ऑन कंप्यूटर टू कंप्यूटर, और प्रॉफिट के केस में होती है कंप्यूटर टू प्रॉफिट. ठीक है, तो ये याद रखिए. तो यहां पर कैश टू कंप्यूटर, so to computer cash column not 40 but 42.